بلوچستان کے علاقے یوب میں سیکیورٹی فورسز کا سمبازا میں کلیئرنس آپریشن جاری، مزید 3 بھارتی حمایت یافتہ خوارجی دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن کے دوران ہتھیار، گولیاں اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق 7 سے 9 اگست تک جاری کارروائیوں میں 50 خوارج ہلاک ہوئے۔ پہلے روز 33، دوسرے روز 14، تیسرے مرحلے میں 3 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ ISPR کے مطابق امن و استحکام سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ شدت پسندوں کے ساتھ ہونے والا جرگہ ناکام، حکومت کا باجوڑ میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ۔ سرکاری ذرائع کے مطابق قبائلی عمائدین کے جرگے نے فتنہ الخوارج سے علاقہ چھوڑنے سمیت 3 مطالبات کیے تھے۔ فتنہ الخوارج نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا بتانا ہے تحصیل مامون کے 2 علاقوں میں تقریباً 300 دہشت گرد موجود ہیں، جن میں 80% سے زیادہ افغانی ہیں۔ بلوچستان بھر میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس 1 ہفتے سے معطل۔ ڈیٹا انٹرنیٹ سے دہشت گرد تنظیموں کو رابطے میں سہولت فراہم ہوتی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں موبائل فون انٹرنیٹ کی بندش کا فیصلہ کیا گیا۔ بلوچستان میں موبائل فون ڈیٹا انٹرنیٹ سروس اگست کے مہینے میں معطل رہے گی۔ کولو، چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، لولالئی، زیادت، قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور ہردئی میں موبائل انٹرنیٹ سروس غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ پاکستان اور ٹرمپ حکومت کی بڑھتی قربت نے بھارت کی تشویش میں اضافہ کر دیا۔ یہ پیش رفت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اور پاکستان کے درمیان حالیہ سفارتی رابطوں کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اس سال موسم گرما میں 2 بار امریکہ کے اعلیٰ سطحی دورے کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت کی۔ امریکہ نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ مجید بریگیڈ کو BLA کے پہلے سے موجود خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد درجے میں شامل کر لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ 2024 میں کالعدم BLA نے کراچی، گوادر میں خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ 2025 میں BLA نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر مارچ میں ہونے والے ہائی جیکنگ کی ذمہ داری قبول کی، جس میں 31 شہری اور سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے، جبکہ 300 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنایا گیا۔ اسلام آباد قتل کی لرزہ خیز واردات، جائیداد کے تنازع پر ناخلف بیٹے نے باپ اور 2 بہنوں کو ذبح کر دیا۔ 30 سالہ محمد علی نے اپنے والد انسپکٹر ریٹائرڈ محمود حسین اور ہمشیرہ شبنم زہرا کو اپنے گھر میں چھری سے ذبح کیا۔ پنڈی میں کانسٹیبل بہن 35 سالہ انجم زہرا کو بھی موت کے گھاٹ اتارا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم نے 3 ماہ کے بھانجے سالار حمزہ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ نوزائیدہ کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور ملزم کو حراست میں لے لیا۔ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو بلا روک ٹوک استعمال کرنے کے لیے چھوڑے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سینتاس معاہدے کی عمومی تشریح سے متعلق فیصلہ عالمی ثالثی عدالت کی جانب سے 8 اگست کو سنایا گیا، تاہم پیر کو عدالت کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑے، ہائیڈرو پاور منصوبے کے استثناء معاہدے میں طے شرائط کے مطابق ہوں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ عدالت نے قرار دیا کہ ثالثی عدالت کے فیصلے حتمی اور فریقین پر لازم ہیں۔ امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ، امریکی صدر ٹرمپ نے چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چین امریکہ ٹیرف معاہدے کی مدت آج ختم ہو رہی تھی، تاہم ٹرمپ نے صدارتی حکم پر دستخط کرتے ہوئے چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی۔ جنوری میں ٹرمپ نے چینی درآمدات پر 145 پر ٹیرف عائد کیا تھا، جواب میں چین نے امریکی درآمدات پر 125% ٹیرف لگایا تھا۔
9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज मुल्जिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें। चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा, क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती हैं? अदालत ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जो किसी फरीक के केस को मुतासिर करे। आज की समाअत में सिर्फ प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 19 अगस्त 2025 तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक 10 से ज़ायद दरखास्तों पर समाअत। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चाकीवाड़ा थाने की हुदूद से लापता होने वाले 4 अफराद घर वापस पहुंच गए हैं। अदालत ने दरखास्त गुजारों की तस्दीक के बाद उन 4 अफराद से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मुतल्लिका इदारों को इक़दामात तेज करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां गैर आइनी हैं। उमर अयूब को गैर आइनी तरीके से निकाला गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट हमें हमारा आइनी हक देगी। उमर अयूब पर हमें फख्र है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने कोई रेफरेंस नहीं भेजा। उमर अयूब अवामी नुमाइंदगी कर रहे थे। आवाज़ उठाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। दुआ कर सकते हैं कि जजेस हिम्मत करके इंसाफ दें और दी गई सजाएं गैर कानूनी करार दें। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के 9 मई केस में सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अगले हफ्ते तक अपीलें लग गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील नहीं लग रही। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर हमारी अपील सुनते ही नहीं हैं। ये शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख दे दी। रावलपिंडी में डेंगू के वार 58 नए केसेस तस्दीक। 11 मरीज अस्पतालों में दाखिल। तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 7 हो गई। डेंगू से रवा साल रावलपिंडी में किसी मरीज की मौत रिपोर्ट नहीं हुई। जिला रावलपिंडी में डेंगू के 30 केसेस और मरी में 28 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम ने डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2288 FIR दर्ज किए। 1257 मुकामात सील। 3555 चालान किए। खिलाफ वर्जी पर 42 लाख से ज्यादा जुर्माना भी वसूल किया गया। महकमा मौसमियात की दरियाए चनाब में सैलाब की वार्निंग जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए चनाब और दरियाए रावी के मुल्हिका नालों में भी सैलाब का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। PDMA ने कमिश्नर गुजरावाला, सरगोधा, कमिश्नर फैसलाबाद और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन के अलावा महकमा ज़राअत, आबपाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइव स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को भी अलर्ट जारी कर दिया। मार्का हक में शानदार फतह ने आज़ादी के जश्न में नई रूह फूंक दी। हर कोई जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन हो गया। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। घर, इमारतें, शाहराहें सब स्लाइड से सज गईं। शहरियों का जोश व खरोश दीदनी। झंडियों, बैजेस, दीगर आराइशी सामान की खरीदारी बढ़ गई। सक्खर में बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर में जगमगा उठा। सजावट ने शहरियों के दिल मोह लिए। मार्का हक और आज़ादी के जश्न के सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची में रंगारंग तकरीब, म्यूजिक का तड़का। नामवर गुलकार आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। गवर्नर सिंध भी सुरों पर झूम उठे। दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नौजवान मुल्क और कौम का कीमती असासा हैं। यौम नौजवान का मकसद मसाइल का अजाला और बेरोजगारी का खात्मा है। हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार, हर पांचवां रोजगार से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में 12 अगस्त को यौम नौजवान करार दिया। 2000 से हर साल नौजवानों का दिन मुख्तलिफ थीम्स के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तान में 40% नौजवान गैर तालीम याफ्ता हैं।
नौजवानों को बाइख्तियार बनाना वक्त की अहम जरूरत है। नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत से मुकम्मल आगाही तरजीह है। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नौजवान आबादी को खिराज तहसीन पेश किया। हमारी नौजवान आबादी मुल्क की मौशी तरक्की में बुनियादी पहिए की हैसियत रखती है। नौजवानों की तालीम, हुनरमंदी, पेशावराना इस्तेदाद में इजाफे के लिए पॉलिसियाँ बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाखों नौजवानों की हुनरमंदी में इजाफा कर रहा है। नौजवान पंजाब और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल और काबिल कदर सरमाया है। नौजवानों के ख्वाब को ताबीर देने के लिए सब वसाइल निछावर कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब का मुनफरिद होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम नौजवान तलबा के ख्वाब पूरे कर रहा है। सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम से हजारों नौजवान जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो रहे हैं। नौजवान मुल्क और कौम का कीमती असासा हैं। सिंध के नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें तरक्की की ज़मानत हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा नौजवान आबादी वाला मुल्क है। इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया में नौजवान रहनुमा बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। नौजवान मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा करें। आज का नौजवान कल का लीडर है। तरक्की का सफ़र इन्हीं के साथ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया इकदाम। वाशिंगटन डीसी में 800 नेशनल गार्ड एहलकार तैनात। शहर की मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कंट्रोल बराह रास्त विफाकी हुकूमत के तहत ले लिया। ये इकदाम मकामी मुंतखब क़यादत को नजरअंदाज करते हुए किया गया, जिसे अमरीकी सियासत में गैर मामूली और मुतनाज़ कदम करार दिया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि ये फैसला जराइम की लहर को रोकने के लिए किया गया। अगर जरूरत पड़ी तो शिकागो समेत दीगर डेमोक्रेटिक शहरों में भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली से आवारा कुत्तों को हटाने का हुक्म। 8 हफ्तों में कुत्तों के लिए पनाहगाहें कायम करने की हिदायत। दिल्ली में कम से कम 60,000 आवारा कुत्ते मौजूद हैं। दिल्ली में रोजाना 2000 के करीब कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत में 2024 के दौरान 37 लाख कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए। अदालत ने हुक्म दिया कि पकड़े गए कुत्तों को दोबारा आज़ाद ना किया जाए। जानवरों के हुकूक के कारकुन रुकावट डालेंगे तो कार्रवाई होगी। अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। भारतीय अदालत का दो टोक फैसला। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप 2025 की फिक्र सताने लगी। भारतीय स्क्वाड का ऐलान 19 या 20 अगस्त को हो सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक टीम के ऐलान से कबल तमाम क्रिकेटर्स की फिटनेस रिपोर्ट हासिल करने का फैसला किया गया है। एशिया कप के लिए कई क्रिकेटर्स को ज़ेरे गौर न लाने का इम्कान है। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और केएल राहुल एशिया कप में कर सकते हैं। एशिया कप 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब इमारात में शुरू होगा और भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई ग्रुप ए में शामिल हैं। वर्ल्ड गेम्स स्नूकर 2025 मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। मेडल से एक फतह दूर मोहम्मद आसिफ ने बरतानवी प्लेयर को आउट क्लास करते हुए 2-0 से कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड गेमर की तारीख में पाकिस्तान अब तक एक ही मेडल जीत सका। स्नूकर में शौकत अली ने 2001 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चीन में वर्ल्ड गेम्स मुकाबले के दौरान इटली का एथलीट चल बसा। बैनुल-अक़वामी तंजीम ने तालवी एथलीट की मौत की तस्दीक कर दी। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन मेटिया डेबर्टुइस जुम्मे को मर्दों के मेडल डिस्टेंस ओरिएंटिंग इवेंट के दौरान बेहोश हो गए थे। चीन के आला तिब्बी इदारे में इंतहाई निगहदाश्त के लिए मुंतकिल किया गया, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो मंगल को चल बसे।